پیار سے محبت سے چاہت و چاشنی سے آج ایک بار خوبصورت سی اس محفل کے اندر جہاں پر پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جن کو میں نے پیار کرنے والا کہا ہے، اور پیار کرنے والے جو ہیں وہ ہم پاکستانیوں سے بڑھ کر اور کون ہو سکتے ہیں۔ جناب کسی نے کیا خوب کہا ہے، ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جو بڑی معنی رکھتا ہے۔ اگر آج کی اس پوری تقریب کا میں آغاز اس لائن سے کروں کہ اگر کوئی سمجھے تو یہ بتاؤں، اگر کوئی سمجھے تو یہ بتاؤں کہ عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ اور آج ہم عشق اور دوستی اور بھائی چارے کی بات کریں گے، اوورسیز پاکستانیز کی ایک اور زبردست سی محفل جہاں پر آج ہم لوگ موجود ہیں، اور ایک ایسے دوست، ایک ایسے ساتھی کو اعزاز دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں جن کے بارے میں جن کا تعارف بھی ہوگا، جن کی کوالٹیز، جن کی خصوصیات میں بھی بات ہوگی۔ میرا خود کامران مائیکل صاحب سے ایک عرصے دراز سے تعلق ہے، جب پہلے بھی برطانیہ میں آتے ہیں تو ہمیشہ اپنے دوست احباب کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے نجی دورے پہ بھی، اپنے سرکاری دورے پہ بھی، اور یہ ان کا بڑا پن ہے۔ لیکن آپ تمام لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ تمام لوگوں کے لیے ایک بات میں ہمیشہ ایسی محفلوں میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے اسٹیج سیکرٹری بننے کا یا بات کرنے کا، تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ پاکستان سے باہر ضرور ہیں، میں آپ ہر ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہر ایک شخص، لیکن ہم تمام لوگوں کے اندر سے کوئی پاکستان کو باہر نہیں نکال سکتا۔ یہی شاید ہماری سب سے بڑی کوالٹی ہے، اسی لیے ہم اپنے لوگوں کو اعزاز دینا چاہتے ہیں اور عزت ان کی بنانا چاہتے ہیں۔ تمام لوگوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے راکی خان کا سلام، اپنا تعارف کراتا چلوں۔ ہائی وے میں ایک مقامی ٹاؤن ہے کچھ ہی فاصلے پہ یہاں سے، ساؤتھ ایسٹ میں، وہاں پر میرا اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے، آواز ریڈیو 107.4 FM، میں اس کی ساری مینجمنٹ دیکھ رہا ہوں، اور عرصے دراز سے آپ لوگوں کے ساتھ مختلف موقع پہ ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ چہرے یہاں پہ نئے ہیں، اس لیے موقع سمجھا کہ اپنا تعارف بھی آپ کے ساتھ کراتا چلوں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، ہو جایا کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے کہ نارملی جب پاکستانیوں کے فنکشن ہوتے ہیں تو ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا جناب یہ بات جملہ تھوڑا سا درست کر لینا چاہیے، کیونکہ اس جملے کے اندر مجھے سمجھ نہیں لگتا یہ کمپلیمنٹ ہے یا یہ کسی قسم کی شکایت ہے، تو اس کو ہم بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب جو صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح وقت پر اور صحیح جگہ پر اپنے مخصوص انداز سے آتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش کروں گا قاری امین چشتی صاحب سے، وہ برائے مہربانی وہیں سے اگر آپ کر، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العظيم، صلى الله عليك يا رسول
अपने अपने वतन से प्यार करते हैं। अभी हमारे भाई ने बड़े कीमती बात की पाकिस्तान वतन की। तो शायर अपने वतन की बात करता है, मुझसे मेरा वतन पूछते हो तो मेरा दिल क्या जवाब देता है। पूछता है जब कोई आपका वतन क्या है, तो दिल जवाब देता है, लिख पता मदीने का। तो दिल जवाब देता है, लिख पता मदीने का। आखिरी शेर सब कुछ छोड़ते हुए टाइम की कमी। बुलंदी से नीचे कोई नहीं आना चाहता, हर बंदे की ख्वाहिश है ऊपर जाऊं, है जी, एक वजारत मिले दूसरी मिल जाए, अमीर हो जाऊं। और यहाँ उल्ट बात है कि ऊपर वाले नीचे आना चाहता है, ये अजीब बात है। आसमां की ख्वाहिश है मैं जमीन बन जाऊं, जब से उसने देखा है मर्तबा मदीने का, जब से उसने देखा है मर्तबा मदीने का। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। और तो ख़ास तौर पर इन्होंने अपने आखिरी कलमात कहे और जो शेर कहा, उसके बाद अचानक अजीज़ मियाँ कवाल की एक बड़ी खूबसूरत सी कवाल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज अमीर साहब, तो उनकी एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन जो है वो मुझे कोट कर गई। आई डोंट नो कि मुझे सही तरह याद है कि नहीं। कहते हैं, है पता तो लापता, है पता तो लापता, वो है लापता। है पता तो लापता, वो है लापता, वो लापता को है पता, तुझे है पता तो लापता। क्या बात, क्या बात। तो ये बड़ी जरूरी बात है। राजा मोहम्मद इदरीस साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो 120 सेकंड में, लोग नॉर्मली यहाँ पे कहते हैं जी आपके पास 1 या 2 मिनट है, मैंने नंबर बहुत बड़ा कर दिया है, लेकिन मैंने 1 या 2 के साथ बल्कि 120 सेकंड लगा दिए हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कोई मीडिया का आदमी हूँ तो थोड़ा सा उसको फ्लेवर अप करने के लिए मुझे एक मूवी है, उसका डायलॉग भी याद आ गया कि ये 120 सेकंड जो है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हारे 120 सेकंड है, तो लोगों की तारीफ कम और अपनी बातें 120 सेकंड में ज़्यादा करनी है। हर जिस भी सीकर ने यहाँ पे आना है, क्योंकि ये 120 सेकंड तुमसे तुम्हारा खुदा भी इसके बाद नहीं छूट सकता। तो 120 सेकंड के लिए मैं बुलाता हूँ राजा मोहम्मद इदरीस साहब को। बहुत शुक्रिया। मेहमान खसूसी जनाब कामरान माइकल साहब, भारतीय वज़ीर इंसानी हुकूक, जनाब डॉक्टर शरीफवाल साहब, मेरे भाई जनाब नासिर भट्ट साहब, जनाब मलिक रियाज साहब, जनाब अंजम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वालों, सेक्रेटरी साहब ने जो मुझे टाइम दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि उसके अंदर ही ख़त्म करूं। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर आई है, पाकिस्तान के दुश्मन ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो और पाकिस्तान के रहने वालों की किस्मत बदल सके। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के 3 अदवार किसी भी फौजी अदवार से और किसी भी सियासी दौर से उसका कंपेयर कर ले। पहले दौर हुकूमत में मोटरवे बनी, दूसरे में पाकिस्तान दुनिया की 8वीं और इस्लामी दुनिया की पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बना, और तीसरे ये जो मौजूदा दौर में इसमें पाकिस्तान ये जो सी पैक का मनसूबा है, ये मनी ये जो है गेम चेंजर मनसूबा है। अल्लाह के फजल व करम से कायद पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के जो है वो कायदे पाकिस्तान के हाथों में मजबूत क़यादत है। हम अल्लाह से दुआ को करते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, और हम कायदे पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं। ओवरसीज़ में जो पाकिस्तानी हैं वो मियाँ नवाज शरीफ की बहुत बड़ी जो है वो कुव्वत है, और अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त दुनिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजह से पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर जो है वो मजबूत तरीन जो है। तो मैं इसी पे इत्तफाक करता हूँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया राजा मोहम्मद इदरीस साहब, बड़ी खूबसूरत बात कही पाकिस्तान की। अगर तारीफ़ें क्या है पाकिस्तान का, हम तमाम के तमाम जोग्राफी हालात से लेकर माशी हालात तक या तमाम फाइनेंशियल सिचुएशन को डिस्कस करें तो यकीनन सी बात है कि आज तमाम लोग जो है वो फ़ख्र से मुल्क पाकिस्तान का नाम लेते हैं और इसी तरह लेते रहेंगे और वक्तन वक्तन जो है वो हम आपको इस प्रोग्राम में बताते भी रहेंगे। मेरे जो अगले स्पीकर हैं वो हैं हाई विकम, जिस मकामी टाउन इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे नवाज शरीफ लेबर ग्रुप ने ये खूबसूरत सा डिनर जो है वो शाया दिया है जनाब मोहतरम कामरान माइकल साहब के एजाज़ में। मेरी हमेशा जो है वैसे कामरान साहब के साथ जो है वो सोशल नेटवर्किंग पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो इनसे बात होती रहती है और मैं इनको कहता रहता हूँ कि जनाब ये बता दीजिए कि किस दिन आपकी आमद है यहाँ पे, कि हम भी अपना जो है वो महसूस करते हैं इनके लिए। ये इतने ख़ास आदमी हैं और इनकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि जब मैं इनको बुलाऊंगा स्टेज पे तो यकीनन सी बात है मेरे को बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी महफिल में अटेंशन रखवाने के लिए बताते चलूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूबे के अंदर अगर अक़लियतों को या अगर कम्युनिटीज़ को जो है पाकिस्तान के अंदर किसी ने पहचान दी है, एक एजाज़ दिया है, एक इज़्ज़त दी है और उनके लिए आवाज़ उठाकर उनका एक सतून बने हैं, तो पाकिस्तान का वो सतून जो है वो कामरान माइकल आपके सामने। आज वेलकम इधर साउथ हॉल की एक समाजी शख्सियत जनाब ख्वाजा आसिफ साहब से मैं गुजारिश करूँगा, एक बड़े ही सोशल किस्म के इंसान हैं, उनसे मैं कहूँगा कि जनाब आपके इस खूबसूरत से ब्रॉडवे पे हम यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम लोगों को वेलकम करने के लिए आपको दोस्तों, मैं सियासी आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहा गया है कि कुछ कहूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 120 सेकंड 120 मैं उसी के अंदर रहूँगा। तो मोहतरम कामरान माइकल साहब हमारे मेहमान खसूसी हैं, हम उन्हें क्योंकि हम साउथ हॉल से तोला के हमारा आप बहुत से लोग तो बाहर से आए हुए हैं, आपको वेलकम करते हैं और सिर्फ एक दरख्वास्त करने लगे हैं कि बहुत से मेहमान ग्रामी और सबके मेरे सब दोस्त हैं और इन सब को मैं सलामत करता हूँ, लेकिन अगर सबका नाम दिया तो 120 सेकंड ख़त्म हो जाएंगे। आपको खुदावंद करीम ने मौका दिया है पाकिस्तान की खिदमत करने का। पाकिस्तान के इस वक्त दुश्मन ज़्यादा और दोस्त कम हैं। हमारे जिनके लिए जो हमारे आका बने हुए थे उनके दिल अंदर से बहुत काले हैं, वो हमारे मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद करीम ने कलमे के नाम पे जो मुल्क बनाया है उसे आबाद करने के लिए बनाया है और इंशाअल्लाह वो इसी तरह कायम दायम रहेगा। मियाँ साहब बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत से लोग क्रिकेट खेलने वाले या दूसरे जितने भी हैं वो उन्हें मुखालफत करते हैं, हर चीज़ के ऊपर खुद सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। अल्लाह उन्हें नेकी की हिदायत दे। इंशाल्लाह मैं तो हमेशा अपने कारी साहब से कहता हूँ, हमारे इमाम हैं, और मैं उन्हें कहता हूँ कि ये उनके लिए ये दुआ किया करें कि अल्लाह उन्हें नेकी की हिदायत दे। और लेकिन आजकल कुछ समझ नहीं आती कि जब मैं छोटा सा था तो यतीम खाने वाले कितने लेके आते थे, वो लगाते थे वहाँ पे दुकानों के ऊपर और महीने का 1 रुपया लेते थे। उसके ऊपर लिखा होता था 10 चीज़ों को खा जाती हैं, सबसे ऊपर लिखा होता था झूठ रिज़्क़ को खा जाता है। खुदावंद करीम क्यों इनको रिज़्क़ देता है? ये झूठ भी बोलते रहते हैं और रिज़्क़ भी खुदावंद करीम दे रहा है। इंशाल्लाह उसने इनकी रस्सी दराज की हुई है, इंशाल्लाह एक दिन वो ठीक हो जाएगा। और फिर हमें इस वक्त हमें उन आका की ज़रूरत है। ये जो आका हमारे हैं वो ठीक नहीं है। मैं इलामा साहब का एक शेर अर्ज करता हूँ, बहुत लंबी नज़म है लेकिन सिर्फ एक शेर पढ़ने लगा हूँ। करे सवार ऊँट पे अपने गुलाम को पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। हमें भी कुछ ऐसे ही आका की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों से मैं थोड़ी सी एक और गुजारिश भी करूँगा। मैं हमेशा से जो है वो एक बात अपने मुख्तलिफ जो है रेडियो प्रोग्राम्स में भी कहता हूँ या मुझे कभी मौका मिलता है कि जब रॉकी बोलता है तो दिल से बोलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो मुँह से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि टेबल के ऊपर जो है वो बात की खेल को छोड़ के थोड़ी सी बात सुनी जाए जो बात किसी और जगह से हो रही है। बहुत शुक्रिया। जनाब मेरे अगले स्पीकर राजा सिकंदर साहब खुशरंग इंसान है, राजा भी हैं और सिकंदर भी हैं, इससे बड़ी तारीफ की क्या हो सकती है। माशाल्लाह ग्लोबल पाकिस्तान एंड कश्मीर सुप्रीम काउंसिल के हेड हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। गुजारिश करूँगा कि हमें 120 सेकंड की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब
चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर कमरान माइकल साहब, डॉक्टर चौहान साहब, नासिर भट्ट साहब, हमारे भाई मलिक रियाज साहब और जितने भी स्टेज पर तशरीफ फरमाए, और भाइयों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई कमरान माइकल साहब को वेलकम करता हूँ साउथ हॉल में। आप आए, हमें मौका दिया आपसे मिलने का, आपसे गुफ्तगू करने का। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है कि पाकिस्तान में माशाअल्लाह जो काम हो रहा है, तरक्की हो रही है, मैं उसकी भी आपको मुबारकबाद देता हूँ कि माशाअल्लाह जो हमारे कायद नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये सी पैक का जो मनसूबा बना है, माशाअल्लाह इससे पाकिस्तान इतने दूर चला जाएगा कि आपको अंदाजा ही नहीं है। दूसरा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का, मोटरवे का जाल बिछाया है इन्होंने, वो भी ये पिछले कोई 10-15 साल की बात है। पहले मेरे दोस्त कोई पाकिस्तान गोरे यहाँ से गए बिजनेस कम्युनिटी के, उन्होंने कहा जब जीटी रोड पर हम ओवरटेक करें गाड़ी को तो वो इस तरह पीछे डर जाए, मत कहेंगे अभी तो क्रैश हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा, कभी डेवलप नहीं करेगा। तो ये जितना भी सारा नवाज शरीफ साहब के साथ जाता है। दूसरा, मैं ये भी मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर भी बात जरूर कहूँगा कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है माशाल्लाह बहुत ही दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है, खूबसूरती के लिहाज से, मदनी हर लिहाज से। लेकिन अब जो उसमें ये तबाही हो रही है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी हुकूमत इस पर तवज्जो दे। हमारे बहन भाई जो वहाँ मर रहे हैं उनके लिए इस पर काम करें। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के वजारत के दान आपके पास है, तो मुझे बड़ी एक मायूसी हुई। मैं यहाँ मेरे दोस्त बैठे हैं, नईम मलिक साहब, हम हाल ही में यूनाइटेड नेशन में गए, कश्मीर इशू पर हमने वहाँ आवाज़ उठाई, लेकिन बड़ी मुझे मायूसी हुई वहाँ कि वहाँ नुमाइंदगी पाकिस्तान की इतनी नहीं है जितनी लॉबी इंडिया की है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप खुदारा यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और लॉबी अच्छी तरह करें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के सवालों को और आपकी पॉइंट्स को, जो आपकी रिक्वेस्ट है आपकी स्पीचेस में। यकीनन सी बात है जब कमरान माइकल साहब आएंगे और आपसे बात करेंगे तो वो आप लोगों को एड्रेस भी करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो है उनका आगे या उनकी गवर्नमेंट का सारा एजेंडा है। दोस्तों साथियों, मेरे जो अगले स्पीकर हैं उनको बुलाने से पहले एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, मैं वो बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप लोग यकीनन उससे एग्री करेंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में, हर कौम की ज़िंदगी में, हर सल्तनत की ज़िंदगी में, हर इलाके में, हर शहर में, हर मुल्क में दो कल होते हैं। लोग कहते होंगे कि आपने हमेशा कल आने वाली का सुना है, लेकिन जो कल गुजर जाती है वो भी बहुत मायने रखती है। और इंसान अगर कल से कल का ताल्लुक बना के रखे तो आज जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और कल आने वाली जो है वो यूथ के हाथ में है। इसीलिए मेरे अगले स्पीकर जो हैं वो यूथ विंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मियां मोहम्मद सुहेल साहब, उनसे मैं गुजारिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कमरान माइकल साहब को आज के इसके डिनर में जो नवाज शरीफ लवर की जानब से दिया गया है उसका आमदीद कहता हूँ। और उसके साथ साथ डॉक्टर अशरफ खान साहब हैं, वो तशरीफ़ फरमा है। अंजन चौधरी साहब हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के प्रेसिडेंट, यूके के प्रेसिडेंट हैं। और उनके साथ नासिर भट्ट साहब हैं, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और जो चेयरमैन साहब हैं जनाब मलिक रियाज साहब, नवाज शरीफ लवर ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। तो आज का उन्होंने प्रोग्राम जो मुनक्किद किया है, जो डिनर का इस्तेमाल किया है, और उसमें इन तमाम मेहमानों को बुलाया और तमाम मेहमानों को बातचीत करने का मौका दिया। और इसके साथ साथ आज जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर उठी है, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की इक़्तिसादी जो तरक्की जो है ना उसकी एक हायर है, एक रुकावट है। तो इंशाअल्लाह हम नवाज शरीफ के ज़ेर क़यादत, नवाज शरीफ चूँकि एक दबंग लीडर हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के, मैं ये समझता हूँ कि पूरे एशिया के एक दबंग लीडर हैं। उनकी लीडरशिप में ये जो दहशतगर्दी की लहर है जो उठी है, हम दुश्मनों के हमसाया मालिक के जो आज़ाइम है, जो नापाक इरादे हैं,
जो नापाक मकासद हैं हम उन अपने मुल्क में इंशाअल्लाह कामयाब होने नहीं देंगे। हाल ही में जो कि 7 शरीफ का जो वाक़या पेश आया है, लाहौर का जो वाक़या पेश आया है, मैं समझता हूँ ये हमारी नवाज शरीफ की क़यादत की वजह से ही, शहबाज शरीफ की क़यादत की वजह से ही और उसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान की वजह से वो उन्होंने सहूलतकार जो पकड़े हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा जो उनके तमाम तर जो जितने भी मंसूबे हैं वो उनको नाकाम बना दिया है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि दहशतगर्द के हर दहशतगर्द के आखिरी दम तक हम उनके घर में जाके दहशतगर्दों को मारेंगे। हमारी पाक फौज में ये कहा कि दहशतगर्द को उनके घर तक मारेंगे, आखिरी दहशतगर्द को उनके घर में जाकर हम उनको मारेंगे। इंशाल्लाह नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत जो हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की राह में गामज़न है और जो सी पैक का जो मंसूबा है मैं ये समझता हूँ उसको नाकाम बनाने के लिए ये एक लहर उठी है। हम इस लहर को नाकाम बनाएंगे नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इंशाल्लाह। और क्योंकि जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि टाइम बहुत थोड़ा है तो इसके साथ साथ मैं एक अहम ऐलान मैंने करने हैं जो कि मेरे जो प्रेसिडेंट साहब हैं अंजम चौधरी साहब उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि आज के इस फंक्शन में मैं ऑन द बिहाफ ऑफ अंजम चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम यूथ विंग के, उनके बिहाफ पे मैं ऐलान करता हूँ कि जो शर्जील मलक साहब हैं वो PML नून यूथ विंग वाइस प्रेसिडेंट UK, आज उनको इनके बिहाफ पे मैं इनको इन्होंने अपॉइंट किया है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ जनाब मोहम्मद खान साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग UK जो है उनको भी अपॉइंट किया है, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ तीसरे जो हमारे दोस्त साथी हैं असफान मुजाहिद साहब हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग लंदन जो है ना वो भी अपॉइंट हुए हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त की कमी की वजह से मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी ज़बरदस्त बात भी कही और यकीनन सी बात है कि हमारे अर्ज़ वतन पर या हमारी जो माँ मुल्क जिसे मैं माँ लैंड भी कहता हूँ, हमने बहुत सी जगहों पर जो है ये बात पहले भी कही है, पता नहीं आप लोगों ने कभी सुनी है कि नहीं सुनी है कि बहुत से लोग जो है वो कहते हैं जनाब हम ओवरसीज़ हैं और दूसरे मुल्क में रहते हैं और हमें बड़ा प्यार है। तो मैं कहता हूँ जनाब आप ओवरसीज़ ऑफिसर्स कह के तो ऐसे रस्मन जो है वो अपने पढ़े लिखे होने का फ़र्ज़ निभाते हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते कि माँ लैंड से प्यार बहुत है और कमाल लैंड को आप लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बात सारी जो है वो माँ लैंड और कमाल लैंड की है, इसमें आप लोगों ने जो है रिश्ता बनाया हुआ है। इस वक्त मेरे पास जो अगले स्पीकर हैं जनाब उनके बारे में बताता चलो कि उनकी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की जब एक ऐसा वक्त आया था जब उनको अपने बहुत से करीबी दोस्तों की और साथियों की ज़रूरत थी, जब एक एग्ज़ाइल का वक्त था, उस वक्त जब एक रिजीम चली थी, उस वक्त इस शख्स ने बहुत ज़्यादा अपनी खिदमत जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ दी। और आज जो है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सरपरस्त आला हैं बाबू अजमल साहब। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि उन्होंने जो एक अरसे दराज से अपना रिश्ता बनाए रखा है आज अपने ख्यालात का इजहार करें हमारे साथ। बाबू अजमल साहब। सबसे पहले डॉक्टर माइकल साहब उनको वेलकम करता हूँ। सबको वेलकम करता हूँ। सबसे पहले हम जो ये रियाज साहब ने पूरा लगाया है नवाज शरीफ, ये बहुत इंशाल्लाह कामयाब हुक्मरानी के साथ कामयाब होगा और हम सब इनके मुकाबले उनकी मदद के लिए तैयार हैं। सर थोड़ा इधर भी देखो, कैमरा देखे थोड़ा बदल ना देखो, वही तो थोड़ा कैमरा देखो। अच्छा जनाब, मैं जिन लोगों को आवाज़ नहीं आई, मैं क्योंकि बाबू सर रेडियो से गुजारिश है कि मीडिया के हवाले से बता दें कि कैमरे जब भी कोई बोले तो हमारी तरफ कैमरे की तरफ से मैं बिल्कुल बता देता हूँ। ठीक है, ये भी अच्छा है, आज मैं बता मेरा नाम रेडियो भी है। सर रेडियो के हवाले से मैंने कहा जब पैदा हुआ तो नाम कुछ और था, जब बड़ा हुआ काम सीखा तो लोगों ने नाम जो है रॉकी खान रख दिया। आज महफिल में पता लगा कि ये नाम ये पर पसंद आया मुझे, लोगों ने थोड़ी टेंशन स्माइल किया। बहुत शुक्रिया जनाब। मीडिया का जिक्र है तो मैं पहले बाबू अजमल साहब की रिपीट करने से पहले ये बताता चलूँ कि मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए कोई भी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कमरे में या मखसूस वक्त में जो है वो हम इतने लोगों को बुला सकते थे, लेकिन मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि जब यहाँ से हम जाएंगे कल का दिन, आज की शाम या आने वाले मज़ीद दिनों में, ये आज की दिन जो है वो
यादगार बनाने का जो सबक या सेहरा जाएगा वो मीडिया के इन्हीं लोगों को जाएगा। ये तमाम लोग जो आज यहाँ पर आए हुए हैं अपना वक्त निकाल कर इस खूबसूरत से प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। आई थिंक दे ऑल नीड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दोस्तों साथियों, आप लोगों को मैं बताना चलूँ, बाबू अजमल साहब ने क्या बात कही, वो साथी जिनको शायद थोड़ी सी जो है वो आवाज़ वहाँ तक नहीं आई, और उनको आवाज़ इसलिए नहीं आई क्योंकि रास्ते में लगता है बहुत सी और आवाज़ों की लहरें जो हैं बीच में टकरा रही थी, जिसकी वजह से ये आवाज़ का राब्ता जो है उनका वहाँ तक नहीं पहुँच सका। तो पहले तो उनसे भी इनडायरेक्टली मैंने कह दिया कि थोड़ी सी तवज्जो जो है प्रोग्राम की तरफ दीजिएगा। जनाब, इन्होंने एक बात मखसूस अंदाज में कही, मुख्तसर आपको बयान करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप बनाया गया है नवाज शरीफ लवर्स का, और जो तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो मोहतरम कामरान माइकल साहब भी आज यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर चौहान बैठे हैं, बाकी तमाम दोस्तों के उन्होंने नाम लिए, उन्होंने यही कहा कि मेरी दुआ है कि ये सिलसिला जो है वो इसी तरह मजबूत से मजबूत होता रहे और हम इसी तरह जो है वो आगे प्रोग्रेस करते रहें। ये एक अच्छी सोच है, एक अच्छा फैसला है, और इसमें आप तमाम लोग जो है उनका साथ देना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, और ये इंशाल्लाह ताला उनकी बेस्ट विशेज़ हैं, बड़े भी हैं कि ये सक्सेसफुल रहे। दोस्तों साथियों, आप जिनको मैं बुलाना चाहूँगा स्पीच के लिए, को वो वैसे तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अरसे दराज से जब भी PML नवाज का नाम आता है बरतानिया के अंदर, ख़ास तौर पर बरतानिया कहूँगा, तो ये शख्स हमेशा जो है वो ना सिर्फ स्टेज पे मौजूद होता है, ना सिर्फ उन फैसलों पे मौजूद होता है, बल्कि इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी का, ये समझ लीजिए कि इतना वक्त इन्होंने अपने खूनी रिश्तों को नहीं दिया होगा जितना इस शख्स ने जो है वो इस पार्टी को अपना वक्त दिया है, अपनी डेडिकेशन दी है। हमारे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त और मेरे साथी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PML नवाज UK, प्रेसिडेंट ऑफ नवाज शरीफ लवर्स, जनाब मोहतरम नासिर भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों और कामरान माइकल साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लेके आए थोड़े शॉर्ट टाइम में, और मेरे जो साथी भाइयों की भी बड़ी मेहरबानी, वो काफ़ी देर से ये टाइम पे आ गए थे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या आपको पता है, ये ट्रैफिक और आना जाना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, पर फिर भी चले कुछ देर होगी, लेकिन सब इकट्ठे हो गए। आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि कामरान माइकल साहब आए, ह्यूमन राइट के मिनिस्टर हैं, और ख़ास कर जो पाकिस्तान में आजकल हालात हैं उसके बारे में ये आपको ब्रीफ करेंगे आज जो सिचुएशन क्या है। लेकिन एक बात जो है कि हम सब इस बात पे मुतफिक हैं कि जो पाकिस्तान में ये आज का 1-2 हफ्ते से जो बम धमाकों की लहर चली है, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं जिनको ये नहीं बहा रहा कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ चले, जब से ये CPAC का मनसूबा शुरू हुआ है उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान के दुश्मन इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये चीज़ किसी तरह रुक जाए, और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी, सब सियासी जमातें इस बात पे इकट्ठे हैं कि हमने पाकिस्तान को एक तरक्की की तरफ लेके जाना है और इकट्ठे होके जाना है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, देखिए जैसे अब सुबह सरहद में ये आज एक फिर वाक़या, अफसोसनाक वाक़या हुआ है, लेकिन हम उन पुलिस वालों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल के 3 सुसाइड बम्बर मेरा ख्याल में आए थे उस जगह। एक को तो 2 को तो उन्होंने मार दिया, लेकिन एक ने कोशिश की अंदर आने की, फिर भी 4 पुलिस वाले शहीद हुए, और कोई मेरे 2-4 बंदे और जो सिविलियन है वो भी शहीद हो गए। लेकिन इंशाल्लाह हम इकट्ठे होके सारे सूबे इस बात पे और सारी सियासी जमातें इस बात पे मुतफिक हैं कि हमने अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ना, कभी उनको माफ़ी नहीं देनी। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान जो रहा है वो उसकी यही कोशिश है, उनको यही एक ही चीज़ की तकलीफ़ है कि पाकिस्तान अब नुमाया तरक्की की तरफ जा रहा है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने ये जो बेड़ा उठाया इंशाल्लाह इसको वो आगे लेके चलेंगे। जितनी रास्ते में मुश्किलें हैं उसका हम सब ने मिलकर उनका साथ दे के इनको दूर करना है, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की की तरफ, अभी तो इंशाल्लाह चल रहा है लेकिन इससे मज़ीद आगे जाएगा, और वो वक्त दूर नहीं है जब बंदे बाहर अब देखें रूस, अपना ईरान, और वो भी ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, ये बरतानिया भी ये चाह रहा है कि अब हम CPAC में शामिल हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमारा CPAC मनसूबा
ईरान चाइना जो हमारा साथी है जिसने ये शुरू किया है और पाकिस्तान का वो साथ दे रहा है, और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह ताला ये सीबा का मंसूबा कामयाब होगा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। और बाकी ये जो आज़ाद कश्मीर या ह्यूमन राइट्स के हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये इस बात पे ज़्यादा आपको ब्रीफ करेंगे कि आजकल जो हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वो लोग अपनी जानें दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये यकीन है हम सबको कि अब मकबूजा कश्मीर का हर जवान शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन उसको आज़ादी चाहिए और इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा, उसको आज़ादी मिलेगी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये जो सिकंदर साहब ने बात की कि वो राजा सिकंदर साहब ने ये बात की कि वो ज़्यादा हमारी हुकूमतें इसको नहीं उठाया, लेकिन आप याद रखें कि इसी दौर में इस चीज़ को ज़्यादा उठाया गया है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब जम्मू आज़ाद जम्मू कश्मीर इंशाल्लाह आज़ादी से लोग जो है ना वो अपनी आवाज़ उठाएंगे कि हम किसके साथ हैं। बाकी बस अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाए और पाकिस्तान के दुश्मनों को इंशाल्लाह कामयाबी कभी नहीं होगी। खुदा हाफिज़, अल्लाह आपका। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही जनाब नासिर भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इनकी हर बात पर जो है बात इंशाअल्लाह ताला और आमीन कहने को कहता है, क्योंकि कहते हैं जब भी अपने लोगों की और अच्छी बात के लिए सुनो तो कोई भी महफिल हो तो वहाँ पर अगर किसी एक फरिश्ते को जन्म देने के लिए लफ्ज़ आमीन को इस्तेमाल कर दो तो वो फरिश्ता जहाँ जहाँ पे होता है उस बात को दोबारा सुनने पर तुम्हारे साथ मौजूद होता है और वो भी इसकी दुआ के लिए जो है वो मिल जाता है। तो साथियों, आप जो मेरे अगले स्पीकर हैं जिन्होंने आज की ये खूबसूरत सा शाइया अरेंज किया है, आप तमाम लोगों के लिए यहाँ पर दावत दी है, मेहमान खसूसी को भी यहाँ पे बुलाया है, उनके लिए आज ये जो एजाज़ रखा है। और उनको बुलाने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप लोग बहुत देर से यहाँ पे आए हैं, महफिल को शुरू हुए भी जो है इस फंक्शन को तकरीबन जो है वो घंटा होने को है। आप तमाम लोगों में से कितने लोग जो है वो हाथ खड़ा करके मुझे ये बता सकते हैं कि जब आप लोग आए तो ये जो दो बैनर स्टेज के सामने राइट और लेफ्ट पे पड़े हैं, इस पर एक खूबसूरत सी कोट लिखी हुई है उस शख्स की जिसने मुझे पहचान दी, जिसने आपको पहचान दी, जिसने नाम पाकिस्तान दिया, जिसकी वजह से आज हम सब हैं और पूरी दुनिया में जो है हमारी एक शनाख्त है। कितने लोगों ने आप लोगों में से जो है वो इसको पढ़ा था, और नहीं पढ़ा तो अभी पढ़िए मेरे साथ कि उम्मीद, हिम्मत और खुद एतमादी मेरे हम वतनों के लिए यही मेरा पैगाम है। दोस्तों साथियों, इन खूबसूरत से अल्फाज के अंदर कायद आज़म के पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों की तारीख बयान होती है, और जब हिम्मत होती है, खुद एतमादी होती है, यकीन होता है, और जब लफ्ज़ हम वतनों का इस्तेमाल होता है तो फिर जैसे बातों बातों में नासिर भट्ट साहब के मुंह से जो है चौधरी निकल गया, राजा साहब ने कहा मैं राजा हूँ, तो आज देखा जाए तो यहाँ पे ना कोई राजा है, ना महाराजा है, ना चौधरी है, ना जट है, ना मलिक है, यहाँ पर सब के सब जो है वो पाकिस्तानी है, और वो पाकिस्तानी और इन्हीं तमाम लोगों को इकट्ठा करने के लिए आज मेरे इस जिस स्पीकर को बुला रहा हूँ उन्होंने ये महफिल रखी है। मलिक रियाज साहब, चेयरमैन नवाज शरीफ लवर्स यूके, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन नवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ दिल की अता गहराइयों से अपने बड़े ऑनरेबल ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर एंड सेनेटर कामरान माइकल साहब, जो मेरे बड़े भाई भी हैं। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आल दो कि ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। इन्होंने हमेशा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये मेरे बड़े भाई हैं और ये मुझे दोस्तों में शुमार रखते हैं, ये इनकी मोहब्बत है, इनकी मेहरबानी। और इन्होंने आज ये साबित कर दिया कि कामरान माइकल हर उस शख्स के साथ है जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ है, जो कायदे आज़म के पाकिस्तान के साथ है। मैं सबसे पहले पाकिस्तान से तशरीफ लाए मेरे मोहतरम कामरान माइकल को बरतानिया में खुशामदीद कहता हूँ, और हमारे अजीम शान कायद जनाब नवाज शरीफ लवर्स के नाम से बनाए जाने वाली तंजीम नवाज शरीफ लवर्स में वेलकम करता हूँ। पाकिस्तान के हवाले से एक दो ज़रूरी बातें करना चाहूँगा, वो कि हमें आज तमाम अहबाब को बशमूल मीडिया आज मोहतरम कामरान माइकल साहब को ज़्यादा सुनना है, बल्कि इन्हीं को सुनना है। कामरान माइकल साहब को मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि रॉकी खान ने इनके बारे में बहुत ब्रीफ कर दिया और मेरे पास और अल्फाज नहीं है कि मैं इनका आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ। आप जानते हैं, आप सबकी ख़ास तौर पर पाकिस्तान दुश्मन ताकतों और पाकिस्तान में जमहूरियत को तबाह करने वाले नाम नहाद लीडरों की भी
तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। इस खौफनाक लहर, इस खौफनाक खून की होली से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का मन तबाह हुआ है, मेरी दूसरी जानब जनाब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के पैगामात से जो हौसला और जो जज्बा पूरी कौम को दिया गया, जो मिला है, वो एक अपनी मिसाल है और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरे। और दुश्मनों का तो ये ख्याल था कि ऐसे ख़तरनाक इक़दाम से शायद हम लोग डर जाएंगे, बिखर जाएंगे, नाउज़ बिल्लाह, पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम, मीडिया, सियासतदान, दानिश्वर, जिसके अंदर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, मेरे अब क्रॉस द बोर्ड एवरीबॉडी फ्रॉम पाकिस्तान एक जान, एक कौम बन के एक साथ खड़े हैं, माशाअल्लाह, सीसा फलाई दीवार की तरह। जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत सफ़े अव्वल पर रहते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हमारे फौजी जवान हमेशा तैयार हैं। पाकिस्तान सुपर लीग ने पूरी दुनिया में उन तमाम ताकतों के मुंह पे तमाचा मारा जिनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म कर दी जाए। इसका तमाम क्रेडिट मेरे कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जाता है, जिन्होंने एक कामयाब टीम का इंतखाब किया। आज पाकिस्तान सुपर लीग पूरी दुनिया में अपनी पहचान है। दहशतगर्दों ने तो पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान PSL का फाइनल पाकिस्तान लाहौर में ना हो, मगर सब ने देख लिया, आखिरी फैसला पाकिस्तान की कौम ने किया और PSL का फाइनल लाहौर में होने जा रहा है। CPAC के हवाले से वो उनको बड़ी डॉक्टर साहब अक्सर कहा करते हैं, मेरे बड़े भाई, मुझे वो अल्फाज मेरे दिल पे नक्श हो गए हैं। मैंने मीडिया में देखा, मेरे किसी दोस्त ने, भाई ने, जियो ने 44 वाले लगाए कि किसी के पेट में दर्द है, समा ने सबसे पहले, तो डॉक्टर साहब आज ये वाकई किसी के पेट में दर्द है। CPAC से ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी ताकतों को भी बहुत तकलीफ है। CPAC की कामयाबी पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है और पूरे पाकिस्तान की कामयाबी पूरे खित्ते और पूरी दुनिया की कामयाबी है। खित्ते की कामयाबी का सेहरा पाकिस्तान के हिस्से में आता है। इसी चीज़ की तकलीफ है इन लोगों को। इंडिया को इसी वजह से वो अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान को गैर महफूज मुल्क साबित करना चाहता है और इंडिया से जितना जोर लग सकता है वो लगा ले। हमारे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत, हमारी मेहनत शामिल है। नाकामी इंशाअल्लाह ताला भारत का मुकद्दर होगी, अफगानिस्तान का मुकद्दर होगी और इंशाअल्लाह उस दुश्मन ताकत का मुकद्दर होगी जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। अब अगर बात की जाए मुल्क के अंदरूनी मामलात की, तो जमहूरियत के दुश्मन इमरान खान पर हर पाकिस्तानी मुहिब वतन सामने है। इमरान खान आखिर चाहते क्या हैं, इस बात की समझ आज तक किसी को नहीं आई। इमरान खान किसी की नौकरी कर रहे हैं या पूरी दुनिया को पता है इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने का बुखार है या बीमारी लग चुकी है। ये वजह है कि वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं और मैं ना मानूँ कि जिद जो 5 साल बच्चे की होती है वो लगा के बैठे हुए हैं। इस चीज़ को सोचे समझे बगैर पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान की मशत इमरान खान के गलत फैसलों और धरनों की वजह से तबाह हो रही है। इमरान खान को होश के नाखून लेना चाहिए। KPK में जो कल PTI की हुकूमत ने गुल खिलाए और पूरी दुनिया के सामने है, ये तो अज़मत है मेरे कायद जनाब मियां नवाज शरीफ की। इन्होंने इमरान खान को KPK में हुकूमत बनाने का मौका दिया, मगर KPK में क्या हो रहा है और क्या हुआ है वो आइंदा इलेक्शन में बताया जाएगा, जब KPK के अवाम इमरान खान को वोट की ताकत से धक्के देकर बाहर निकालेंगे। इमरान खान और उसके चमचों को अब डर सिर्फ इस चीज़ का है, आइंदा इलेक्शन में अवाम का सामना किस तरह किया जाए, किस मुंह से वोट मांगे जाएंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। जनरल मुशर्रफ और जरदारी के गन को समेट कर मुल्क को सही डगर पर चलाना सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ ही ऐसा कर सकते हैं।
बस मैं सबसे अपील करता हूँ तो वो नवाज शरीफ का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें, ओवरसीज में बैठे नवाज शरीफ लवर का साथ दें। मैंने नवाज शरीफ लवर इसलिए नहीं बनाई कि मैं अपने कायद की तस्वीर पढ़ूँ, खुदा की कसम मैंने इसलिए बनाई, मैंने उस शख्स के विजन, उसकी सोच और उसकी मोहब्बत, उसकी तड़प जो पाकिस्तान के लिए, मैंने इसलिए नवाज शरीफ लवर बनाई। मैं आप मीडिया के वसासे से मैं ओवरसीज पाकिस्तानी, यूरोप और यूके तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, आए एक एक कदम आगे बढ़े, नवाज शरीफ का मजबूत करें, पाकिस्तान को मजबूत करें। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जाते एक छोटी सी जरूर करता हूँ, ख्वाजा आसफ साहब आपने बात की आकाओं की, खुदा की कसम मेरा कायद आकाओं में शामिल नहीं होता, मेरा कायद नौकर है, खादम है इस कौम का, और उसने ये साबित किया है 70 साल तारीख में। किसी सियासतदान ने मुझे बताएं, आप किसी अपने दिल पे हाथ रख के, मासवाए भुट्टो के पाकिस्तान के लिए कुर्बानी है, ही वाज अ लीडर हु एडमिट पार्ट ऑफ भुट्टो। किसी शख्स ने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, खाते रहे हैं। नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने इस कौम को रास्ते पे डाला है, डगर पे डाला है, और इंशाल्लाह ताला कामयाबी इस मुल्क का मुकद्दर करेंगे। पाकिस्तान को सबसे इस टाइम इस दहशतगर्दी से गुजर रहे हैं वही निकालेगा। और आज से आप सब माशाल्लाह मुझसे बड़े हैं, देख लें ज़िया का दौर गया है, भुट्टो का दौर गया है, सबका दौर गया, लेकिन पाकिस्तान ने किस दौर में तरक्की की है? सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में तरक्की की है, और सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में तरक्की की है। नवाज शरीफ बहुत शुक्रिया जनाब, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात कही मलिक रियाज साहब, आपने भी दोस्त मोहतरमा में बैठे इस महफिल में जी जो नवाज शरीफ के लवर है उनके लिए जगह है और किसी की जगह नहीं है, क्योंकि ये नवाज शरीफ लवर और नवाज शरीफ पार्टी है। माशाल्लाह। और सब तमाम लोग जो है वही हैं जो यहाँ पर प्यार करते हैं अपने कायद से, नवाज शरीफ लवर्स हैं, इसीलिए सब लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं और अपना मखसूस वक्त भी दे रहे हैं। दोस्तों साथियों, मेरे जो अगले स्पीकर हैं इनके साथ भी हमारी एक बड़ा ही खूबसूरत सा जो है वो ताल्लुक़ है, बड़ा ही खूबसूरत सा जो है वो रिश्ता है। अच्छा, ये मुझे भी पता लगा इस आवाज़ से चुप होते हैं ये तो आवाज़ मुझे मलिक साहब बाद में सिखाइएगा, बहुत सी महफिल में मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी इसके बाद। लेकिन मैं जिनको बुलाना चाह रहा हूँ जनाब, इनके बारे में बताना चलूँ कि ये हैं तो डॉक्टर हैं, लेकिन आप लोगों को कभी पता ही नहीं कि ये किस चीज़ का इलाज करते हैं। बहुत से लोगों ने इनको हमेशा बुलाने से पहले यही कहा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, लेकिन जनाब ये डॉक्टर साहब वो हैं जो इंसान को उसकी बीमारी नहीं पूछते हैं, सबसे पहले इंसान का दिल का पूछते हैं, क्योंकि सारे इलाज जो दिल से होते हैं और ये दिल से इलाज करना बहुत खूब जानते हैं। ज़ौक़ शौक़ में भी बहुत अजीम है माशाल्लाह, और बात करने में भी जो है वो बड़े कमाल के बाज़ौक़ इंसान है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, डॉक्टर अशरफ चौहान साहब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ एडवाइजरी नवाज शरीफ लवर्स यूके, MPA भी हैं। डॉक्टर साहब ज़रा खूबसूरत अंदाज में, दिल के अंदाज में तमाम लोग जो दुरुस्त नहीं उनका इलाज कीजिए, और जो बिल्कुल दुरुस्त हैं उनको अपनी बातों से जो है वो फ़ायदा पहुँचाए। फेडरल मिनिस्टर कामरान माइकल साहब, नासिर भट्ट साहब, जुल साहब, मलिक साहब, बाबू जी, और सबसे आज की नस्ल के हीरो विकी साहब, रॉकी, और सबसे मैं एक नाम नहीं ले सकता, जो मीडिया के जो बड़े गुरु बैठे हुए हैं, मुजाहिद साहब और हक साहब और अवान साहब और खान साहब और सैद साहब, और उधर मुजाहिद साहब और सुल्तान साहब, इनका जिक्र ना करके मैं कोई अपने आप को दुनिया से फारिग नहीं करना। बाकी आप सारे हज़रात, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। मैं मुस्लिम लीग की वजह से MPA रहा, लेकिन मैं तंजीमी सिस्टम में नहीं आया पिछले अरसा दराज से। लेकिन मलिक साहब ने कुछ हफ्ते पहले कहा कि हमने एक तंजीम बनाई है नवाज शरीफ लवर्स, तो मैंने कहा कि उसमें मेरा शामिल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम उस कायद को कुछ वापस नहीं कर सकते, लेकिन मोहब्बत का नजराना ज़रूर पेश कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि जब हम तकसीम और डिवीज़न थी और पार्टी में भी डिस्प्यूट थे, तो उसमें एक मोहब्बत का पैगाम लेके जो मलिक रियाज साहब आए हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं बल्कि उन लोगों को भी कहूँगा कि जो नहीं है आज, हम कुछ लोगों को मिस कर रहे हैं जिनकी
मुस्लिम लीग नून में इतनी कुर्बानियाँ हैं अरसा दराज से, और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि वो सारे हम इकट्ठे होंगे। तो मलिक साहब आप इससे बेहतर काम इस वक्त नहीं कर सकते, तो आपको मुबारक हो। कामरान और मैं इकट्ठे पंजाब असम्बली में 5 साल रहे हैं, और कामरान की एबिलिटी जो है माशाल्लाह वो ये है कि वो पंजाब असम्बली के मेंबर थे, फिर पहले मिनिस्टर थे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने और अब फेडरल मिनिस्टर हैं। तो ये सारी एडवर्सरीज होती हैं, ही इज़ क्रिश्चियन, ही इज़ नॉट मुस्लिम। और मैंने एक बात करनी है हाथ जोड़ के देखें, हमारी जान भी हाजिर है हुजूर के लिए। मक्का मदीना, हमें मक्का मदीना को मेरा सारा माल, मेरा खून चाहिए, मैं हाजिर हूँ, पर मदीना मेरा वतन नहीं है। मेरा वतन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान वतन जब ऑटोमन एम्पायर पूरी दुनिया में बनी और उसने सारे मुल्कों पे इस्लामी पे कब्जा कर लिया, तो इराक रहा, जो था कुवैत रहा, सऊदी अरब रहा। हमें मोहब्बत है, मैं कहता हूँ जान ले लें हजूर के लिए। मैं कहता हूँ मुझे मेरा खून का आखिरी कतरा हाजिर है, पर ये एल्यूजन जो हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं, मदीना मेरा वतन नहीं है। मेरे तो वहाँ लाखों करोड़ों मिलियन लोग काम कर रहे हैं पिछले 3600 साल से, और उनको किसी एक को शहरियत नहीं मिली। मेरा तो वतन ये है जिसने मुझे शहरियत दी। तो इस एल्यूजन को खत्म करें, आप हकीकत पसंदाना तरीके से दुनिया में फेस करें। और हकीकत यह है कि मेरा वतन पाकिस्तान, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, पर मेरा दिल पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के दिल के अंदर उतनी ही जगह किसी मुसलमान के लिए है। बात को समझा नहीं, असल बात नहीं, बात को समझा आपकी भी मैं समझ गया, आपने बात को समझा नहीं, आप उल्ट कर दिए बात को। मैंने उतनी ही जगह पाकिस्तान में मेरे लिए है, सुन्नी के लिए है, शिया के लिए है, जितनी क्रिश्चियन के लिए है। जब तक हम वतन को पहले नहीं रखेंगे, मैं एक दफा नहीं, मैं करोड़ दफा कहता हूं, और मैं शर्त लगाता हूं कि मैं किसी भी आलम से कम, मेरी मोहब्बत हजूर पाक के लिए, मदीना के लिए कम नहीं है। मेरी जिंदगी, मैं कहता हूं, हजूर के ऊपर निसार है, और मेरी अगर कोई हरकत, मेरी हिम्मत, मेरी रिसोर्स हजूर पाक के लिए काम आ जाए, मेरे बच्चों की आ जाए, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ दुनिया में नहीं चाहिए। लेकिन मेरा वतन पाकिस्तान है, मेरा वतन सऊदी अरब नहीं है। मेरा वतन जहाँ का पासपोर्ट है, पर वतन मेरा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान बनाया जिना ने, और विजन जिना की हमें चाहिए। हमें किसी और की विजन नहीं चाहिए जिसने कहा कि यहाँ हर एक के लिए जगह, माइनॉरिटी के लिए जगह। और आज की महफिल चूँकि मेरे भाई कामरान के लिए है, तो मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कामरान और कामरान जैसे कामरान, 3% minorities of Pakistan are more important than 97%, because इनकी वजह से हमारी इज्जत है। अगर हम 3% को इज्जत नहीं दे सकते, तो इंडिया तो 35% मुसलमानों को उसने जगह दी हुई है, और वहाँ तो रोज फिल्में आती हैं जिसमें खान है। अगर वो बुरा है तो बुरा है, हम कहते हैं इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पर जब हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं, तो वहाँ सिख भी हैं, वहाँ मुसलमान भी है, और हम क्रिश्चियन के लिए जगह तंग कर देते हैं, हम शिया सुन्नी के लिए जगह कम कर देते हैं। अगर वतन रखना है तो सुन लो, रिलीजन मेरा जाती मसला, वतन हम सबका मसला है। जब बात करो, जिस प्लेटफॉर्म से बात करो, तो वतन की बात करो, और वतन पाकिस्तान है। और खुदा की कसम, जिसका वतन नहीं है उसकी दुनिया में कोई जगह नहीं होती। मैं जब पढ़ रहा था आज से बड़े साल पहले आयरलैंड में, तो शाम को लाइब्रेरी में मैं बैठा था, तो मेरे सामने एक लड़का बैठा था, तो उसने मुझे कहा तुम कहाँ से मिले? पाकिस्तान से आया हूँ। तो मैंने उसको कहा तुम कहाँ से हो? तो उसने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ये रो क्यों रहा है? तो मुझे कहता है मैं उस जगह का हूँ जो रही नहीं है, मैं फ़लस्तीन का हूँ।
उस दिन को कभी ना सोचो जब आपका वतन नहीं रहेगा, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपके बच्चों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान के लिए काम करना, पाकिस्तान सबसे अव्वल है। और वो पाकिस्तान जो कायदे आजम ने सोचा, वो पाकिस्तान नहीं जो पाकिस्तान बनने के खिलाफ लोग थे, आज पाकिस्तान के मामे बने हुए हैं। पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान, और वहाँ हर एक के लिए जगह है। वहाँ हिंदू भी है, वहाँ क्रिश्चियन भी है। उस पाकिस्तान की तलाश में हम हैं जहाँ से ये माइकल पैदा होता है, कामरान, और इससे पहले वो भट्टी साहब जो जिनको शहीद मारा गया था। और ये वो लोग हैं जो चेहरा है हमारा, और हम इनको अगर चंद को संभाल नहीं सकेंगे तो दुनिया हमें, देखें कितना दुनिया हमें क्रिटिसाइज करती है कि हमारे ह्यूमन राइट के स्टैंडर्ड बड़े लो हैं। हम अपने आप को ऊपर लेके आए। मैं कहता हूँ, मैं एंड पे यही बात करता हूँ कि काश मेरा एक एक खून का कतरा हजूर पाक की गुर्बत के लिए कुर्बान हो जाए, पर वतन पाकिस्तान मेरा है, मेरा एक सऊदी अरब वतन नहीं है, वो सऊदियों का है, और हम पाकिस्तान को बचाएंगे। और आखिर पे जो मलिक साहब ने बात की, और अभी हसन निसार साहब एक ऐसे हैं एंकर के जो बहुत देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, और उन्होंने कभी मियां नवाज शरीफ साहब की फेवर में कभी कोई कलमात नहीं कहे। लेकिन 3 दिन पहले मैंने उनको सुना तो उन्होंने कहा मुझे पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर नजर आया। 2 days ago उसने कहा मुझे पहली दफ़ा ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर भी कुछ चीज़ होती है। जब मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इनको चुन चुन के मारेंगे, और फिर हमले, आज चौथा दिन है अफगानिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तानी फोर्सेस जाके हमला कर रही हैं। जरूरत है अफगानिस्तान की तो आके दिखाए। और पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड को मजाक समझा हुआ है? कोई मजाक है? कोई इंडिया के लिए हमको मजाक है? और देखें स्ट्रेटेजिकली जब पाकिस्तान बना था, बेईमानी से उन्होंने जगह कम दी, लेकिन हमने इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ब्लॉक किया हुआ है। जियोग्राफिकली देखें तो इंडिया की एक्सेस जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ब्लॉक्ड है भाई। पाकिस्तान की एक्सेस ब्लॉक नहीं है। पाकिस्तान चीन के साथ है, रशिया के साथ है, ईस्टर्न यूरोप के साथ है। ये जो CPEC का एक मंसूबा हमारे लीडर ने शुरू किया है, ये वाकई गेम चेंजर है। और जब मैंने बात की थी तो वो वाकई दर्द जिसके पेट में उठ रही है वो ये हमले करेगा, लेकिन हम में पावर है कि हम उसको रेजिस्ट करेंगे। आई एम सॉरी मैं ज़्यादा बोल गया, मुझे माफ़ कर दें, बट आई लव एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। और यकीन सी बात है आपकी तमाम बातों के साथ मैं चाहता तो मैं फ़ौरन जो है अपने चीफ गेस्ट को मौका दे सकता था कि क्योंकि इसके बाद अब उन्हीं की बारे में थोड़ी सी तवज्जो मैं चाहूँगा जब मैं उनको बुलाता, लेकिन डॉक्टर साहब की कुछ बातों ने जो है मुझे मजबूर कर दिया एक बात कहने के लिए। और वो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को, कुछ लोगों को शायद लगा कि शायद डॉक्टर साहब को मौलाना साहब की बात जो है वो समझने में गलती लगी, या अगर मौलाना साहब को लगा कि उनको इनकी बात समझने लगी, तो एक छोटा सा इजाफा कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं दोनों के हिसाब में गलत हूँ। कहते हैं कि बहुत मशहूर जुमला है, बड़ा गौर से सुनिएगा आप तमाम। कहते हैं कि मक्के का जलाल है, मदीने का जमाल है, ये कहते हैं। लेकिन आज डॉक्टर चौहान ने ये कहा है कि मक्के का जलाल है, मदीने का जमाल है, पर पाकिस्तान बेमिसाल है। यही हमारी सोच है। तो अपना मज़हब अपनी जगह है और शनाख्त अपनी जगह है। इसी के साथ साथ मैं अपने चीफ गेस्ट साहब को दावत देने से पहले आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो यहाँ पे मौजूद है। मैं आज यहाँ पर आया, मुझे गुज़श्ता रोज़ जो है वो कल जब मलिक साहब ने बताया कि हम अपना प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, तो मैंने इनको कहा कि जनाब मैं बिल्कुल आपका दावतनामा एक्सेप्ट करता हूँ और आऊँगा। और आज मेरे बड़े प्यारे दोस्त नईम ताहिर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आईबेकम में या एचएल से हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी। मैंने कहा चलिए, अब आप जैसे प्यारे लोगों और मलिक साहब को जैसे प्यारे लोगों के सामने नाम भी नहीं हो सकता, और ख़ासतौर पे जब मेरे दोस्त कामरान माइकल जो है वो यहाँ पे आए हों। बड़ा अरसे से मैं इनको रेडियो प्रोग्राम्स पे इंटरव्यू कर रहा हूँ, इनके साथ बातचीत हो रही है। इनको बुलाने से पहले बहुत से लोगों ने कहा ह्यूमन राइट्स की बात हुई, मिनॉरिटीज़ की बात हुई, लेकिन एक बात मैंने सोच के रखी हुई थी कि आज इनको दावत देने से पहले आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आप लोग इस बात को सिर्फ और सिर्फ कामरान माइकल की ज़ात पर रख के ना सोचिएगा, बल्कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से सोचिएगा। आप तमाम लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान का झंडा कैसा है, यकीनन सी बात है। और पाकिस्तान के झंडे को किस बेसिस पे बनाया गया था। जब परचम
दिखाया गया था तो बताया गया था कि इसके अंदर 2 कलर रखे गए हैं और इसमें जो सब्ज़ कलर है वो सब्ज़ कलर जो है वो मुसलमानों का कलर है, जो कि पाकिस्तानियों के अंदर जो मुसलमानों की अक्सरियत है उसको रिप्रेजेंट करता है, बड़ा हिस्सा है। और जो वाइट हिस्सा है वो अक़लियतों को रिप्रेजेंट करता है, उनके हकूक़ के लिए है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ एक अंदर बात कि ये सिर्फ तारीफ़ यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसी झंडे के अंदर जो है वो चांद भी है और इसी झंडे के अंदर तारा भी है, और चांद भी सफ़ेद कलर का है और तारा भी सफ़ेद कलर का है। यानी पाकिस्तान के जो स्टार हैं वो कामरान माइकल जैसे लोग हैं, यही चांद है, यही सितारा है, यही वो सफ़ेद है। आप तमाम लोगों ने हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट, चीफ गेस्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फंक्शन, द वन एंड ओनली मिस्टर कामरान माइकल। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मेरे भाई डॉक्टर अशरफ चौहान साहब, नासिर भट्ट साहब, अंजुम चौधरी साहब, रियाज मलिक साहब, बापू जी, रॉकी खान साहब, और यहाँ पर बैठे मीडिया के मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, साथियों, और मियाँ नवाज शरीफ से मोहब्बत और मियाँ नवाज शरीफ को चाहने वालों, आखिरी पहले तो मैं बेहद मशहूर हूँ आप सबका कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और इस पुरवकार तकरीब को सजाने के लिए मैं अपने तमाम दोस्तों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वो दोस्त भी जो दूर दराज जगहों से आए हैं, हाई वेकम से भी आए हैं, लंदन से भी आए हैं, दूसरे इलाकों से भी आए हैं, तो मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और थोड़ा मुझे आने में देरी हुई और मैं समझ सकता हूँ ये कैफियत क्या होती है जब किसी का इंतज़ार किया जाता है। वो शायर कहता है ना जी, हम शेर से शुरू करूँगा कि बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतज़ार के लम्हे बड़े अजीब होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझसे कबल मेरे दोस्तों ने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की, बड़ी खूबसूरत बातें सुनने में आई, और रॉकी खान साहब ने इस महफिल को 4 चांद लगाए अपनी गुफ्तगू से। इसमें हुस्न भरा अल्फाज की अदायगी इस तरह की थी कि सब लोग मुतवज्जो हों। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो महफिल है इसमें हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है और हम बात भी नवाज शरीफ लवर्स की कर रहे हैं। तो जब हम मोहब्बत की बात करते हैं, अखुवत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तो इसी पे तो बेस पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान की बुनियादों में जब तक हम मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे को मजबूत नहीं करेंगे, ये बुनियादें मजबूत नहीं हो सकती। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इन बुनियादों को हम सब ने मिलकर मजबूत करना है, क्योंकि ये खिता, ये वतन, ये मट्टी, ये मोहब्बतों पर मुहीत है ये इलाका, और हमने, हमारे अबाव-ओ-अजदाद ने मिलकर मोहब्बतों को परवान चढ़ाया है। और हमें याद है हमने कभी ये दहशतगर्दी का अंसर सुना ही नहीं था, लेकिन वो लोग जो मैली आंख से हमारे वतन अजीज़ को देखते हैं, अब बतौर वतन के सपूत होने की हैसियत से, वतन के बेटे होने की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग मैली आंख से हमारे मुल्क को देखें, हमें उनका क्या हशर करना है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमें 2 तरह के दुश्मनों का सामना है। 2 दुश्मन, एक वो जो सरहदों के पार हमें नज़र आते हैं, और एक वो जो मुल्क में ही रह के मुल्क की जड़ों को खोखला करते हैं। और जिस तरह फैसिलिटेटर्स की बात हुई, सूरतकारों की बात हुई, ये वही लोग हैं जो मुल्क को बढ़ता फूलता नहीं देखना चाहते और अगयार के साथ मिल के पाकिस्तानियों को बर्बादते हैं, पाकिस्तान में खून की होली खेलते हैं और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर जिंदा कौम पर बनकर उभरता देखना नहीं चाहते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि बासियत कौम, जब कौमें मुत्तहिद होती हैं, मुत्तफिक होती हैं, तो तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि कौमों ने हमेशा वो जंगें जीती हैं। और जिस तहरीक में खून शामिल हो जाए, जिस तहरीक में इंसानों का खून बहे, वो तहरीकें जो हैं वो रंग लाती हैं, क्योंकि खून का रंग जो है बड़ा पक्का रंग होता है, और जब ये बहता है तो अपने असरात छोड़ जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, ख्वाह वो सिविलियंस हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे फौजी जवान हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी की जो भेड़ चढ़े हैं पाकिस्तान के लिए वो शहीद हुए हैं,
تو ان کے خون کو میں سمجھتا ہوں کہ خون کی لاج رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان کے خون کو فراموش نہیں کر سکتے, اور لہٰذا یہ میاں نواز شریف صاحب کا جو عہد پیمان انہوں نے باندھا ہے قوم کے ساتھ, جو ہماری عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کر قوم سے عہد پیمان باندھا ہے کہ ہم قوم کو ایک خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا ہوا ملک پیش کریں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اپنی قوم سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے دوسری رائے والی بات نہیں ہے کہ آخری جو دہشت گرد ہے اس کے خاتمے تک یہ جنگ جاری و ساری رہے گی. لیکن بڑی پازیٹیو بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی اس فضا نے ہماری امت کو, ہماری قوم کو, ہمارے پاکستانیوں کو متحد و متفق کر دیا ہے. بلا تفریق, رنگ, نسل, مذہب, ہم سب کا خون بہہ رہا ہے. یہاں پر نہ تو مسجدیں انہوں نے ان کو چھوڑا, نہ امام بارگاہوں کو چھوڑا, نہ چرچز کو چھوڑا, بلکہ انہوں نے بلا تفریق سب کو ٹارگٹ کیا. تو جب ٹارگٹ ہم سب ہو رہے ہیں, ہمارا خون بہہ رہا ہے اس پاکستان کے لیے, تو یہ پاکستان ہم سب کا ہے. ہم سب نے اس ملک کو, پاکستان کو بچانا ہے. اگر آپ کمپیئر کریں پچھلے 4 سالوں کو, تو 4 سالوں میں جس طرح سے جو پازیٹیو حکمت عملی کے ساتھ جو پیش رفت ہوئی ہے, ہمارے جو کامیاب آپریشن ضرب عضب اور کراچی آپریشن کی صورت میں, اس کے نتیجے میں جو حالات خوشگوار ہوئے ہیں اور جس طریقے سے حالات میں چینجز آئی ہیں. 4 سال پہلے ہم ڈیلی لاشیں اٹھاتے تھے, مائیں دعائیں کرتی تھیں, بیویاں دعا کرتی تھی کہ ہمارے خاوند یا ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے جو ہیں خیریت سلامتی سے گھر واپس آ جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کی وہ قابو پانے کے لیے بہت بڑے اقدامات کرنے پڑے. ایک دلیرانہ سوچ, اور جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ویژنری ہونا بڑا ضروری ہے, اس کے پاس ایک ویژن ہونا بڑا ضروری ہے, اور دلیر لیڈر ہی قوم کی رہبری اور رہنمائی کر سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف میں وہ تمام صفات شامل ہیں, کیونکہ آج کی محفل کے روح رواں میاں نواز شریف صاحب ہیں. میں چیف گیسٹ نہیں ہوں, آج میاں نواز شریف صاحب چیف گیسٹ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان میں ایسی قائدانہ صلاحیتیں ہیں, وہ ایک ویژنری لیڈر ہیں جو قوم کی مسیحائی اور قوم کی رہنمائی صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں, جن کے پاس نظریات ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو قوموں کو رہبری کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں, وہ قوموں کو ڈائریکشنز تو دے سکتے ہیں, انہیں راستہ تو دکھا سکتے ہیں, لیکن منزل کسی کے پاس نہیں ہے. لیڈر وہ ہے جو قوم کو منزل کی طرف گامزن کر سکے, خود کو ایک منزل کی طرف دھکیل سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سی پیک کی بات ہو رہی ہے, یہ بہت بڑا منصوبہ ہے, یہ ایسا گیم چینجر ہے جو آنے والی پاکستان کی نسلوں کے ساتھ جڑا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں, آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو ہم روشن پاکستان دے سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک ایسا مستحکم پاکستان دے سکیں جس سے میں سمجھتا ہوں پاکستان فروغ پائے. ہماری آنے والی نسلیں, ان کا روشن مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں خود کیونکہ 3.5 سال پورٹس اینڈ شپنگ کا وفاقی وزیر بھی رہا ہوں, تو اس سی پیک کے حوالے سے سارا یہ جو گوادر پورٹ ہے میرے ہاتھوں سے ڈیولپ ہوا ہے. میں نے اس پہ بہت سا کام کیا ہے, اور ابھی جب ہیومن رائٹس پہ آیا ہوں تو مجھے ایک ٹاسک دے کے بھیجا گیا ہے, کیونکہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے اس کو ہیومن رائٹس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اگر پاکستان میں ہیومن رائٹس کی سچویشن بہتر نہیں ہوگی, اگر اس میں بہتری نہیں آئے گی, تو پھر یہ کہا گیا تھا EU کی طرف سے کہ ہم جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے اسے وڈرا کر لیں گے. لہٰذا کیونکہ میرے پاس پنجاب میں بھی یہ وزارت رہ چکی ہے, جب وزیر خزانہ تھا اس وقت میرے پاس ہیومن رائٹس کی وزارت بھی تھی. میرا ویژن کلیئر ہے کہ ہم نے پاکستان کی ڈوبتی نیا کو پار لگانا ہے, اور پاکستان جو اس وقت معاشی طور پر بیدار ہو کر ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہے, ہم نے پاکستان کو مزید مستحکم بنانا ہے. اس کی بقا کے لیے, اس کی استحکامت کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا ہے. اور میں بے حد مشکور ہوں اوورسیز پاکستانیز کے لیے, آپ سب بھائیوں کے لیے, کہ آپ دور رہ کے بھی آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ دور رہ کے بھی جذباتی طور پر, اور آپ کے احساسات, آپ کے جذبات پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں, اور ان جذبات کو ہم جدا نہیں کر سکتے. آپ کے رشتے ناطے, آپ کے پیارے پاکستان میں بستے ہیں. جب پاکستان میں خون بہتا ہے, جب پاکستان میں درد اٹھتا ہے, جب پاکستان میں کوئی آپ کو پکارتا ہے, تو آپ اس پر کان لگاتے ہیں. آپ اس سے غافل نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ پاکستان کا انگ ہیں. آپ چلتا پھرتا پاکستان ہے. آپ کی صورت میں میں سمجھتا ہوں دنیا پاکستان کو دیکھتی ہے. آپ پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں. آپ نے پاکستان کا نام, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ راجہ سکندر صاحب نے بات کی. ابھی میں ریسنٹلی امریکہ سے ہی واپس آ رہا ہوں. وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں میری کچھ میٹنگس تھیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑی خوشائن
एक पेशरफ हुई है हमारी इस लॉबी के लिए भी। अभी 6 महीने 7 महीने मुझे हुए इस वजारत में ह्यूमन राइट्स में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने जिनेवा में भी जाके ह्यूमन राइट्स की जो 3 साल पिछली पेंडिंग रिपोर्ट्स थी वो ले की हैं। अभी अगले महीने मैं एक डेलीगेशन को लेकर यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका जा रहा हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा वहाँ पे ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये मज़ीद मौके मिलेंगे। और ये जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें इस बात का भी अदा किया गया है कि मैं जब नेक्स्ट मंथ जाऊँगा तो मेरी शायद मतवक़्क़ो है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मुलाकात हो, तो हम पाकिस्तान का मौक़िफ़, क्योंकि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए अमन की बात करने वाला बंदा हूँ। और वो लोग, चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने पाकिस्तान का चेहरा मसक करके रख दिया है, हमारा फर्ज बनता है जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम जो पाकिस्तान के वेल विशर्स हैं, बेटे और बेटियां हैं, कि हम उस मसक शुदा चेहरे को खूबसूरत बना के दुनिया के सामने पेश करें। क्योंकि पाकिस्तान का चेहरा मसक चेहरा नहीं था, पाकिस्तान का चेहरा खूबसूरत चेहरा है। हमें दुनिया को वही चेहरा दिखाना है और पाकिस्तान को वैसा ही खूबसूरत बनाना है जैसा पाकिस्तान था, जैसा पाकिस्तान होना चाहिए। डॉक्टर चौहान साहब ने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तो डॉक्टर साहब हम सबका है। मेरे बावजूद की हड्डियाँ पाकिस्तान में दफन हैं। मुझे पाकिस्तान की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा खमीर पाकिस्तान से उठता है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो मेरे अंदर बसता है, मेरी रूह में बसता है, मेरे जिस्म के खून के हर कतरे में बसता है। और पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान में अमन के क़याम के लिए हम अपने आखिरी खून के कतरे को बहाने से गुरेज नहीं करेंगे। आपने शहबाज भट्टी साहब की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पाकिस्तान की बुनियादों में हम सब का खून शामिल है। हम सब का बिला तफरीक, रंग, नस्ल, मजहब, हम सब ने इस पाकिस्तान के लिए खून बहाया है। उसकी सड़कों में हमारा खून बहा है, उसकी बुनियादों में हमारे वालिदा का खून शामिल है। और रही ह्यूमन राइट्स की बात, तो मैं तो एक चीज़ का कायल हूँ। तो बाबा नजमी एक पंजाबी का शायर है जी, बड़ा मशहूर शायर है हमारा, क्योंकि उसने नुमाइंदगी हमेशा उन तबकात की है जो पिसे हुए तबकात थे। मैं उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और वो कहता है कि इक्को सच्चा इक्को मिट्टी ते पक्कियां इक्को पट्ठे। वो ईंट की बात करता है, ईंट इक्को सच्चा इक्को मिट्टी ते पक्कियां इक्को पट्ठे, ए क्यों नाली विचरे लगियां ओ को महल दे मथे ते परया विच मैं तां जावांगा, परया विच मैं तां जावांगा जे गल मेरी मनो, किसे एक दी खातर उथे मंजा कोई डठे ते माड़े नो अख बंधन नालों तगड़े दे सिंह बनो। माड़े नो अख बंधन नालों तगड़े दे सिंह बनो, जेड़ा सांझी खुली विचों खाने देता पट्ठे। और माड़े लोगों की तरफ हाथ करके वो कहता है कि एना विच कमी है की एना नु आखो कमी, एना विच कमी है की एना नु आखो कमी, ओ एना नु ठोके वेखन राजे चीमे चट्ठे। ये चीज़ बुनियादी चीज़ है। ये आज़ादी हमें प्लेट में रख के नहीं मिली, इस आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी है हमें। इसका एहसास या कश्मीरियों से पूछें जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो रोज़ वहाँ पर गोलियों की बौछार में नन्ही जानों का ज़िया होता देख रहे हैं, शहीद होता देख रहे हैं। वानी जैसे नौजवान दिन दहाड़े शहीद कर दिए जाते हैं, नहते कश्मीरियों को बेबाकी के साथ मारा जाता है। और बर्बरियत का ये आलम है कि वहाँ पर भारतीय मुजालिम से कोई भी सेफ नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये हमारा अमली काम भी है। और मैंने इसमें तमाम इंटरनेशनल इदारों को, तमाम एम्बेसीज को इन्वॉल्व किया, सबको हमने खतूत भी लिखे, उनको झंझोड़ा भी। और ये जो जिनेवा में या अमेरिका में मैं गया तो यूएन के दफ्तर के बाहर अंदर हमने कॉन्फ्रेंस की और बाहर हमने प्रोटेस्ट लॉन्च किए और मैंने उस प्रोटेस्ट को खुद लीड किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ में हम इनके साथ शामिल हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारी मिनिस्ट्री है ह्यूमन राइट्स पे, एहतराम आदमियत पे एक गाना जो है हमने तैयार किया और उसे डेडिकेट किया हमने अपने कश्मीरी बहन भाइयों के नाम। तो मेरा ये प्रोग्राम बना हुआ है हमारे कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीरी गवर्नमेंट है उसके साथ, और हम जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडर्स हैं उनको साथ लेके, मिशेल मलिक भी हमारे साथ हैं, हम जाएंगे और कंट्रोल लाइन पे हम ये और उन वादियों में ये जो कश्मीर के लिए हमने सॉन्ग क्रिएट किया है ये हम वहाँ पे जो है वो परफॉर्म भी करेंगे। और इसके बाद ऐड कर दीजिएगा कि वो गाना आपने खुद गाया, वो उस गाने में मैं भी शामिल हूँ। वो शफकत सलामत अली खान के साथ मैंने मिलकर परफॉर्म भी किया। सिर्फ वो परफॉर्म करने का मकसद ये था कि हम अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें कि जो हम कहते हैं वो हम करते भी हैं, हमें अमली तौर पर वो करना भी चाहिए। यहाँ से हम बात करते हैं। और मैं आखिर में एक बार फिर आप सबका बेहद मशकूर हूँ। और
मैं लेकिन आखिर में सब ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम सब मुत्तहिद व मुत्तफिक हो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, हम यहाँ पर आते हैं, हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, हम हुकूमत में हैं और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम दोस्त मिलजुल कर यूनाइट होकर वो इस कॉज को आगे लेकर बढ़ें। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में से जब पाकिस्तानी लोग यहाँ पर आएँ तो वो किसी तशब्बुह का शिकार हो। हमारे लिए हमारे तमाम दोस्त हमारे सरमाती आंखों पे हैं, हम सब दोस्तों को साथ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ के कॉज को मजबूत करना है तो उस कॉज को मजबूत तभी हम करते हैं जब नवाज शरीफ घराना मजबूत होता है, जब एक होता है, और ये घराना तभी मजबूत होगा जब तमाम दोस्त एक साथ मिल के काम करते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सब इकट्ठे होंगे, जब कौम इकट्ठी होती है, तो फिर चाहे वो दहशतगर्द हो या वो दुश्मन हो जो आंखों के सामने है या आंखों के पीछे है या ओझल है, हम उसका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पानी आंख में भर के लाया जा सकता है, पानी आंख में भर के लाया जा सकता है, जलता हुआ शहर अब भी बचाया जा सकता है, और अगर जिस्म के ये 56 हिस्से हो यकजा, दुश्मन जैसा भी हो ढाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जनाब। अब प्रोग्राम जो है वो तो अपने अख्ताम पे आ गया है, लेकिन इजाज़त देने से पहले तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब का सिलसिला का जब मीडिया मिनिस्टर साहब, एक सवाल आपसे है जी कि अभी आपने नॉर्वे का विजिट किया और आप यूरोप के विजिट से हैं, तो आप ये बताइए कि ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, तो आपके इस विजिट से ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप इंसानी हुकूक और ख़ास तौर पर कश्मीर की बात की जाए तो क्या पूरी दुनिया को इस बात का इल्म नहीं है कि इंडिया जो है वो कश्मीर में खून की होली खेल रहा है? तो आप इस हवाले से ज़रा बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है क्या आप एक्शन जो है कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा क्लियर विजन है और मौक़िफ़ भी जो है बड़ा क्लियर है इस मौके पे कि हमने कश्मीर कॉज में जो बात की है उससे हम रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेंगे अपने मौक़िफ़ से। और मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ यही है कि कश्मीरियों को उनका राइट मिलना चाहिए, और आज़ादी का राइट जब हम 21वीं सदी में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर हम किसी को उनके इस बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकते। लिहाजा मियां नवाज साहब ने भी जो कौम ज़्यादा में तकरीर की थी उसका महवर जो था, उसका फोकस जो था वो कश्मीर था। लिहाजा मैं समझता हूँ अगले महीने मैंने फिर जाना है, और जैसा कि मैंने कहा कि हमने तमाम इंटरनेशनल इदारों को खतूत भी लिखे अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने अपनी मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया, बल्कि मैंने तकरीबन जो हमारे यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड और EU से रिलेटेड हमारे सफ़ीर हैं हमारे मुल्क में, 26 के करीब सफ़ीरों को मैंने मदऊ किया था, उनके साथ एक ऐसे ही हमने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और उनको कन्विंस किया कि आप कश्मीर के इस कॉज पे आप आवाज़ बुलंद करें, और वो दरवाजे जो कश्मीरियों के लिए खुलने चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उन पर दस्तक दिए हुए झंझोड़ा। और मैं ये समझता हूँ बल्कि वो अदारे भी हम उनको भी लिखेंगे जो भारत में इंसानी हकूक़ के नंबरदार हैं, तंजीमें हैं, ताकि भारत के अंदर से तो कश्मीरी कॉज की तो तकलीफ मिले, उसमें बात हो। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें दूसरी टाइप वाली बात नहीं है। मेरा खुद से इन्वॉल्व होना और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद यूनाइटेड नेशंस के बाहर जिनेवा में भी और अमेरिका में भी हमने जो प्रोटेस्ट लॉन्च किए हैं उससे कुछ कॉज की तकलीफ मिली है। और ये ऐसी चीज़ें करने से ये हासिल हुआ है कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने इसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि इस कॉज के बारे में बैठ के बात की जाए, क्योंकि तमाम मामला वहाँ पर टेबल टॉक से ही हल होते हैं। लिहाजा हम समझते हैं कि इसके बात होनी चाहिए, इस पर जो हमारी इंटरनेशनल अदालतें हैं वो अपना रोल प्ले करें और इनको उनका राइट जो है वो फौरी तौर पर दिया जाए। कमरान साहब, अभी आपने बताया कि आपने अमेरिका का जो विजिट है आपका वो एक्सपेक्टेड है और प्रेसिडेंट से मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है, तो आफिया सिद्दीकी के हवाले से अमेरिका से आवाज़ें उठ रही थी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे, जब ओबामा साहब के जाने के दिन करीब आ रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि अगर संजीदा होकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी उस बेटी के लिए आवाज़ बुलंद करती तो ऐन मुमकिन था कि अमेरिका इस बारे में सोच सकता था। तो आपके एजेंडे में ये बात शामिल है कि जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आफिया सिद्दीकी के हवाले से कोई बात करेंगे? देखिए जी, बात ये है कि हम हर उस इशू को डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान से जुड़ा है। ये पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान के हर इशू को एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे हर उस फोरम पे। और बुनियादी तौर पर जो तंजीमें वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रही हैं, जो आफिया सिद्दीकी के साथ काम कर रही हैं, इस कॉज को लेकर काम कर रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन तंजीमों को हम ऑन बोर्ड करें
और अब तक की जो उन्होंने पॉलिसी और हिकमत अडॉप्ट करके जिस पोजीशन पे और जिस कैफियत पे आज वो केस खड़ा है, स्टैंड करता है, उसके बाद उसे पुश करेंगे केस को ताकि उसके अगली असरात जो है सामने आ सके। एक छोटा छोटा आप कर ले पहले, पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के तमाम शहरियों को मसावी हकूक़ की ज़मानत देता है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन दे आर ट्रैवलिंग फ्रीली ट्रैवलिंग टू सऊदी अरेबिया। क्या आप महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको बाहर कर दिया गया है उनके इज़राइल जाने में, और स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो निज़ारत जाना चाहते हैं, जो बैतुल लहम जाना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती? क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी हो रही है? क्या आप महसूस करते हैं कि अगले साल तक पाकिस्तान की जो क्रिश्चियन आबादी है वो निज़ारत जाएगी और बैतुल लहम जाके जीसस की जो बर्थ प्लेस है उसकी ज़ियारत करेगी? क्या आप इस बार दे रहे हैं? हाँ ठीक है। मैं इसमें एक और भी ऐड कर रहा हूँ साहब, ये जो सऊदी अरब में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, एक औरत पाकिस्तानी फातिमा उसका नाम है, उसको उन्होंने बिल्कुल उसी तरह आसिया की तरह रखा हुआ वहाँ पे, आफिया की तरह सॉरी, तो उसके बारे में आप हुकूमत क्या करेंगे? आप भी कर लें, आपका भी मेरा ख्याल मेरा सवाल जरा डिफरेंट है। चलें तो इनका पहले आंसर। जो लोग जो लोग पाबंद सलासल हैं दूसरे ममालिक में कैद खाने में हैं, हमारे सफारती जो सफ़ीर हैं वहाँ पे वो ऑलरेडी उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और हमारी बहुत सी ऐसी NGOs हैं जो उन पे काम कर रही हैं, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो हमें उनकी पूरी जो है जो डिटेल्स है वो फराहम भी करता है। और हमारे सफ़ीर इसीलिए बनाए गए हैं, सफारत खाने इसलिए बनाए गए हैं जो पाकिस्तानी कहीं पे मुश्किलात में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, उनकी डेथ्स हो जाती हैं, उनके पास पासपोर्ट्स नहीं होते, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ये तमाम तक चीज़ें जो है फैसिलिटेट करने के लिए सफारत खाने का काम ही आप लोगों को फैसिलिटेट करना है। उनका काम बॉस बन के रहना नहीं है, वो आप लोगों के लिए बनाया है। और जो बात आपने की, मैं ये समझता हूँ कि ये हर इंसान का बुनियादी हक है, उसे इस बात से रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि सफारती सतह पर इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अभी वो नहीं बने, लेकिन मैं उसमें ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन की एम्बेसी चूँकि एग्जिस्ट करती है हमारे पास इस्लामाबाद में, फ़लस्तीन आधा यरूशलेम फ़लस्तीन के पास है, वो फ़लस्तीन के वीज़े पे वहाँ पे जा सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इन सफारती ताल्लुकात की बिना पर अगर तो मुआशरा या हमारी कौम एक्सेप्ट करेगी तो हम इस केस को प्लीड करने के लिए तैयार हैं। सर कामरान साहब, आप ह्यूमन राइट्स के माशाल्लाह वज़ीर हैं। पाकिस्तान में बहावलपुर में एक पुलिस ऑफिसर के साथ सिपाही है वो, उसके साथ वहाँ पे इतना ज़ोदो-कोब किया गया है। ये जो आप ह्यूमन वायलेंस की बात कर रहे हैं उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर जो इतना ज़ोदो-कोब किया जा रहा है उसके ऊपर आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? उसके साथ क्यों नहीं इंसाफ मुहैया करते हैं? आप बाहर की बातें कर रहे हैं, वहाँ मुल्क में अपने सिपाहियों को फांटी लग रही है और कोई बंदा उनका बेचारे का पुरसाने हाल नहीं है, इसके ऊपर ये भी ह्यूमन राइट्स भी आता है। मैं बात ये करना चाहता हूँ, आप तो पुलिस की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कैदियों के भी राइट्स हैं, हम तो कैदियों को भी नहीं छोड़ते। और मैंने अभी पिछले ये 6 महीनों में मुख्तलिफ जेलों के जो विज़िट किए हैं उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को साथ लेके जाता हूँ, और मौके पे जो पैटी क्राइम से मुलव्वस हमारे कैदी हैं उनको फौरी तौर पे हम रिहा करते हैं, और जो जुर्माना अदा ना करने की वजह से इजाफी सज़ा भुगत रहे हैं उसके जुर्माने मेरी मिनिस्ट्री अदा करती है। ये तो सिर्फ आप पुलिस वालों की बात करते हैं, ये तो कोई एक वाहिद केस आपने बताया ना, हमेशा जुल्म तो पुलिस ही कर रही होती है, निज़ाम तो बेहतर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि जिसका भी राइट है, हम समझते हैं ये वायलेशन सिर्फ कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, माशरे में जब बिगाड़ पैदा होता है तो ये कलेक्टिव जिम्मेदारी बन जाती है हम सब की, आपकी भी, मेरी भी और माशरे की भी, हमने मिलकर को संभालना। जनाब आखिरी जो सवाल लेंगे आपका जनाब एक और सवाल अब खाने नजमी साहब मैं जो इन्होंने शेर पढ़ा है, मैं बाबा नजमी का, बाबा नजमी मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे साथी भी हैं। तो मेरा सवाल यह है कि सऊदी अरब में बिन लादन जो कंपनी है वहाँ पर 6-6 माह से लोगों को, मज़दूरों को तनख्वाह नहीं मिली, और वो कई मैंने वीडियो ऐसे देखी हैं कि जो बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, और उनका कोई परेशान। दूसरी बात यह है
कि जो यतीम बच्चे हैं पाकिस्तान में, बेवा हैं, और इंडिया ने तो वहाँ पे राशन कार्ड उनके लिए रखे हुए हैं, उनको किया हुआ है, मगर पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसमें वो मतलब है उनको पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो सपोर्टिंग एक फैसिलिटी दी गई है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। हमने उस प्रोग्राम का नाम चेंज नहीं किया, बल्कि उस प्रोग्राम पे जो अमाउंट से डबल कर दिया है, ताकि बेरोजगार और बिलखसूस जो आपने बताया ऑर्फन्स के लिए और विडोज़ के लिए हमने इस चीज़ को फोकस किया है, ताकि उन तक ये दाद रसी मुकम्मल हो सके और मंथली बेसिस पे उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो सके। रही बात बिन लादेन कंपनी की, ऑलरेडी हमारे जो फॉरेन ऑफिस है उसने इस चीज़ को, क्योंकि ये काफ़ी पुराना इशू है, इसको टेकअप किया है और सऊदी हुक्मरानों के साथ इस चीज़ को इंश्योर किया है कि या तो कंपनी को जो है वो बैन करे या इस कंपनी से जो है वो इन लोगों के पैसे जो है वसूल करके दिए जाए। थैंक यू वेरी मच। खाने के लिए आप कामरान में ये बताइएगा कि अब डेफिनेटली आपका आज इस प्रोग्राम में आना इस बात का सबूत है कि आपकी एक्सेस जो है वो इकोनॉमी तक जो है वो है। नवाज शरीफ लवर का क़याम बरतानिया में, इसको किस तरह देखते हैं आप? हम तो सब तो जो इंसान नवाज शरीफ प्यार करता है जहाँ भी है वो नवाज शरीफ आप तमाम लोगों से थोड़ी सी एक छोटी सी एक सवाल है, सवाल है कि पाकिस्तान में है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो घरों में काम करते हैं, इस सिलसिले में हुकूमत जो है इंसानी दूसरा मेरा सवाल है, हम मीडिया के लोग आप तमाम लोग मीडिया के लोगों के साथ भी खाना लग गया, क्या ठीक है जनाब, एक मिनट जवाब सुनिएगा कामरान साहब का। तवज्जो चाहिए, इसी बात बड़ी जरूरी बात है जो मैं आप तमाम लोगों से करना चाहता हूँ, उसको भी सुनिएगा। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ऑलरेडी हमने जो बिल है वो ड्राफ्ट करके भेज दिया है असेंबली में। इस वक्त वो बैठ हो रहा है लॉ डिपार्टमेंट